کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ خدا مجھ پر رحم کرے۔ میں اپنی بھتیجی کی موت کا خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اس کے لیے موت کو ایک حسین و جمیل پیکر میں خود اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ یہ حالات اتنے پر اسرار، اتنے عجیب اور دہشت انگیز ہیں کہ تم یقین نہ کرو گے کہ اس دنیا میں ایسا بھی ممکن ہے۔ باخدا مجھ جیسا احمق انسان روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور کچھ نہ سمجھ سکا۔ میری پیاری لڑکی کا اس حسین بلا نے سارا خون چوس لیا اور میں دم تک نہ مار سکا۔ کاش کہ مجھے احساس ہو جاتا۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری کارمیلا ویمپائر ایج۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد اپنی زندگی کا یہ عجیب مگر نہایت ہولناک واقعہ لکھنے بیٹھا ہوں۔ ممکن ہے کہ بعض قارئین میری اس کہانی کو حقیقت کی بجائے محض ایک افسانہ سمجھے، اور اگر وہ ایسا خیال کریں تو انہیں مطمئن کرنے کے لیے میرے پاس کوئی واضح دلیل تو نہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو عقل، سائنس یا مادے پر ایمان رکھتے ہیں، شاید یہ داستان من گھڑت قصے سے زیادہ حیثیت نہ رکھے گی، لیکن جو مادے سے ہٹ کر ایک پر اسرار روحانی دنیا کے قائل ہیں، ان کے لیے یقیناً سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کا خاصا مواد ہے۔ میرے دوستو، میری پیدائش جنوب مشرقی آسٹریلیا کے دور افتادہ صوبے سٹریا کے ایک عظیم الشان قدیم قلعے میں ہوئی۔ میرے والد انگریز تھے اور ان کی عمر کا بڑا حصہ آسٹریلیا میں گزرا، اور انہوں نے اپنے کاروبار کے ذریعے اتنی دولت یہاں پیدا کر لی کہ ایک پرشکوہ قلعے کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وسیع و عریض جنگل اور اس کی نواحی زمین بھی خرید لی۔ کبھی کبھی وہ اپنے وطن انگلستان کا ذکر نہایت والہانہ انداز میں کرتے، اگرچہ وہ جرمن زبان بڑی روانی سے بولتے، اور انہوں نے مجھے بھی یہ زبان سکھائی تھی۔ مجھ سے ہمیشہ اپنی قومی زبان انگریزی میں ہی بات کرتے تھے۔ اس قدیم لیکن شان و شوکت کے ہر ممکن سامان سے معمور قلعے میں ہمارے شب و روز نہایت شاہانہ انداز سے گزر رہے تھے۔ گرد و نواح میں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی، البتہ دائیں بائیں چند میل کے فاصلے پر بعض اور امراء کے مکان تھے جن سے مہینے میں ایک آدھ بار ہماری ملاقات ہو جاتی۔ میرے والد ابتدا میں آسٹرین حکومت کی ملازمت میں رہے اور ریٹائر ہونے کے بعد تجارت کرنے لگے، جس میں توقع سے زیادہ کامیابی نصیب ہوئی۔ جس قلعے کا ذکر میں کرتی ہوں وہ سرسبز پہاڑی پر سیاہ پتھر سے بنایا گیا تھا۔ اس کے تین طرف سنگلاخ چٹانیں سینہ تانے کھڑی تھی، اور ایک جانب حد نگاہ تک گھنا جنگل تھا جس میں پتلی سی پگڈنڈی سانپ کی مانند بل کھاتی گزرتی۔ صدیوں سے لوگوں کی آمد و رفت کا یہی واحد راستہ تھا۔ قلعے سے کچھ فاصلے پر گہری خندق پانی سے لبریز رہتی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس میں پانی بہت کم رہ گیا اور زیادہ تر کیچڑ، کائی، گھاس پھوس اور چھوٹے بڑے پتھروں سے بھر گئی تھی۔ اس پر جا بجا قلعے کے مختلف چھوٹے بڑے دروازوں تک جانے کے لیے لکڑی کے پل بنائے گئے تھے، اور اب یہ نہایت خستہ حالت میں تھے، اور جب بھی کوئی گھوڑا گاڑی ان پلوں پر سے گزرتی تو ہر لمحہ خوف رہتا، بس پل گرا کے گرا۔ والد نے بھی سب پل بند کرا دیے اور صرف ایک کھلا رہنے دیا جو قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے واقع تھا۔ ہمارے وسیع اور گھنے جنگل میں جانوروں کی کثرت تھی،
खसूसन गीदड़ और सूअर तो अनगिनत थे। कभी कभार इर्द गिर्द के उमरा शिकारी कुत्ते और तोड़ेदार बंदूकें लेकर आ जाते और कई कई दिन तक हंगामा बरपा रहता। जंगल के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर नदियां और झीलें भी थी जो गर्मियों को मौसम में पहाड़ी चश्मों के ठंडे और शीरीं पानी से लबरेज रहती और उनके किनारों पर लातादाद हसीन फूल खिला करते। चांदनी रातों में यहाँ की सैर जिंदगी के उन हसीन ख्वाबों का एक हिस्सा थी जो नाकाबिले फरामोश होते हैं। वालिद हमेशा मेरे साथ होते और उनके पास भरे हुए पिस्तौल के अलावा बंदूक भी होती, लेकिन हमें कभी किसी हादसे का सामना ना करना पड़ा। वालिद ने एक मर्तबा बताया, किले से लेकर दाएं हाथ से ये जंगल 15 मील लंबा और बाएं हाथ 12 मील चौड़ा है। 7वें मील पर जंगल के अंदर उजड़ी हुई बस्ती के आसार हैं और 20 मील के फासले पर एक कदीम इमारत वाक़या है जिसमें फ़ौज का रिटायर्ड जनरल सिपल डारूफ रहता है और उसके रिहाइश से 3 मील दूर एक और बस्ती के आसार नजर आते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि 200 बरस कबल यहाँ आफत नाज़िल हुई थी। अब वहाँ कदीम कब्रिस्तान में चंद टूटी फूटी कब्रों के निशान, चंद मकानों के खस्ता दरवाज़ों और खिड़कियों और मीलों तक मलबे के ढेर देखकर दिल कांपने लगता है। लोगों का ख्याल है यहाँ इस ज़माने में आसमान से बदरूहें आई थीं और अभी तक उनका असर है। बात तो ये भी कहते कि बदरूहें नहीं आईं, बल्कि इसी आबादी में पहले से इंसानों की शक्ल में मौजूद थीं और ये कार्न अस्टेन ख़ानदान के अफराद थे जिन्होंने बलाओं का रूप धार लिया। उनके बोसीदा और डरावने मकबरे आज भी वहाँ देखे जा सकते हैं जिस पर कुतबे लगे हैं। ये ख़ानदान किसी दौर में इस पूरे इलाके का हुक्मरान था। फिर उन लोगों ने सफ़ाकी हैबत और जुल्म की इंतहा कर दी। उस ख़ानदान की औरतें और मर्द इस हद तक खूनख्वार थे कि वो ज़िंदा इंसानों के गले काट कर उनका खून पी लेते और गोश्त कच्चा ही खा जाते। मेरे वालिद को इन दास्तानों पर बिल्कुल यकीन ना था और ऐसी बातें सुन सुनकर खूब हंसते। ताहम इस वीरान बस्ती में जाते हुए डर उन्हें भी लगता, जिसका अजहार कई बार उन्होंने मुझसे भी किया। सरे शाम ही जंगल पर हौलनाक तारीकी छा जाती और गीदड़ों की चीखों पुकार बुलंद होने लगती और हमारे किले में भी पुर इसरार सा माहौल बेदार होता चला जाता। लंबी राहदारियों में साए से रक्स करने लगते और सुबह होने तक कोई भी अपने कमरे से बाहर ना निकलता। गैलरियों और हाल कमरों में मोमी शमें रोशन कर दी जाती, लेकिन उनकी रोशनी वसीओ अरीद कमरों को तारीकी से महफूज रखने में नाकाम दिखाई देती। आसमान पर बड़ी बड़ी चमगादरें फड़फड़ाती हुई उड़ा करती और चांदनी रातों में ना जाने कहाँ से आ जाती, जिनके बाजू कई कई फुट लंबे और आंखें मशअलों की मानद रोशन होती। उन्होंने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया, लेकिन न जाने उन्हें देखकर खौफ क्यों आता था। किले की दुनिया मुख्तसिर अफराद पर मुश्तमिल थी। 4-5 नौकर, 2 खादमाएं, एक मेरे वालिद और एक खुद मैं। उन दिनों मेरी उम्र मुश्किल से 18-19 बरस थी और मेरे वालिद बुढ़ापे की तरफ तेज़ी से जा रहे थे। उनके कवा में पहली सीधी तेज़ी और चुस्ती ना रही थी। मेरी माँ मेरी पैदाइश के दौरान में ही इंतकाल कर गईं और वालिद ने मुझे बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से परवरिश किया। उन्होंने एक शफीक और खुददार खातून मेरी देखभाल के लिए मुलाजम रख ली और सच तो ये है कि उस औरत ने अपनी जानब से मुझे माँ की मोहब्बत और प्यार देने में कभी कोताही ना की। उस शफीक खातून का नाम मादाम पेरीडॉन था और उसको कभी अपने से जुदा ना पाया।
اور اس کی موجودگی میں مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ مادام پیری کے علاوہ ہمارے گھر میں دوسری مادام لا فولٹن تھی، جس کا کام ملازموں کی نگرانی اور گھر کا حساب کتاب رکھنا تھا۔ نہایت شریف، دیانتدار اور محبت کے جذبے سے لبریز عورت، فرانسیسی اور جرمن زبانیں بے تکلفی سے بولتی، اور مادام پیری کے بعد ہمارے گھر میں اس کا دوسرا درجہ تھا۔ رات کھانے کی میز پر جب وہ نہ آ جاتی، کھانا شروع نہ ہوتا۔ کبھی کبھار گرد و نواح کے اکواب کی لڑکیاں کئی دن ہمارے ہاں قیام کرتیں، اور یوں میرے جی کے بہلنے کا سامان ہو جاتا۔ میں کہیں نہ جا سکتی تھی۔ ہمیشہ ان دونوں خواتین میں سے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ سوتی، یا میرے والد میرے ہمراہ ہوتے۔ بچپن کے زمانے میں کئی برس تک مادام پیری ڈون میرے کمرے میں سویا کرتی، اور جب میں بڑی ہوئی تب وہ الگ کمرے میں سونے لگی۔ بچپن کے دور کا ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں، ایک ایسا واقعہ جو میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ میری عمر 6-7 سال کی ہوگی۔ قلعے کی دوسری منزل پر میری خوابگاہ تھی۔ مادام پیری ڈون کا بستر میرے ہی کمرے میں دوسری طرف کے ساتھ بچھا رہتا تھا۔ یہ کمرہ خاصا وسیع، اور اس کی جنوبی شمالی دیواروں میں کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری ریشمی پردے پڑے رہتے۔ کمرے کی چھت لکڑی کی تھی، اور کونوں میں مکڑیوں نے بڑے بڑے جالے تن رکھے تھے۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی۔ میں اپنے گرم بستر میں لیٹی بے خبر سو رہی تھی۔ دفعتاً میری آنکھ کھل گئی۔ شمع بجھ چکی تھی اور ہر طرف گہری تاریکی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوف زدہ ہو کر مادام پیری ڈون کو آوازیں دیتی رہی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ چند لمحے بعد میری آنکھیں اندھیرے میں واضح طور پر دیکھنے لگی، اور پھر مجھے کچھ یوں نظر آیا جیسے میری نرس اپنے بستر پر موجود نہیں۔ تنہائی کا احساس ہوتے ہی خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے گھٹی آواز میں نرس کو پھر پکارا، لیکن جواب ندارد۔ میں اپنے پلنگ سے نیچے اترنے ہی والی تھی کہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کوئی لمبے سانس لے رہا ہو، اور پھر کچھ عجیب سی خوشبو میرے ناک میں آئی۔ تب میں نے ایک نوجوان اور حسین عورت کو اپنے پلنگ کی پائنتی کھڑے پایا۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح اور آنکھیں ستاروں کی مانند روشن تھی، اور وہ سر سے پیر تک سیاہ رنگ کے لبادے میں لپٹی تھی۔ اس کے ہونٹ کبوتر کے خون جیسے سرخ۔ میں اسے دیکھ کر سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ وہ ہلکے مسکرائی، اور اس کے موتیوں جیسے سفید دانت نمایاں ہو گئے۔ اب وہ پائنتی سے ہٹ کر میرے اور قریب آ گئی، اور اس نے جھک کر اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے اس سے ذرا بھی خوف نہ لگا، اور میں بھی اسے دیکھ کر مسکرائی، اور میں نے گویا خوش ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں اور میری نرس کہاں گئی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی، اور مجھے یوں لگا جیسے کہیں دور گھنٹیاں سی بج رہی ہوں۔ اب وہ میرے بستر پر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ بے اختیار میں نے اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے لپٹا لیا، اور پھر میں گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ پھر دفعتاً ایسے لگا جیسے 2 سوئیاں میرے گلے میں چبھی ہوں۔ درد کی شدت سے میری چیخ نکل گئی، اور ایک بار پھر آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت میرے ساتھ ہی بستر پر لیٹی ہے۔ اچانک وہ بستر سے اٹھی اور آہستہ سے نیچے اتر گئی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید پلنگ کے نیچے چھپ گئی ہے۔ دہشت کے مارے پوری قوت سے میں چیخ اٹھی۔ چند لمحوں بعد مادام پیری ڈون، مادام لا فولٹن اور دوسرے نوکر دوڑے ہوئے آئے۔ انہوں نے بجھی ہوئی شمع روشن کی، مجھے دلاسا دیا اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے روتے ہوئے پورا واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، ایک گوشہ اور ایک کونا چھان مارا، مگر اس حسین عورت کا کہیں پتہ نہ چلا۔ نوکروں اور نرسوں کا خیال تھا میں خواب دیکھ کر ڈر گئی، تاہم ان کے چہرے بھی خوف سے زرد تھے۔
एक बार फिर सभी ने कमरा खूब देखा भाला। दफतन मादाम लाफोल्टन ने मेरे बिस्तर की तरफ देखा। खौफ से उसके होंठ लरजने लगे। उसने नर्स से कहा, खुदा की पनाह, लड़की सच कह रही है। देखो, इसके बिस्तर पर ज़रूर कोई लेटा रहा है, ये सिलवटें साफ बता रही हैं। फिर उसने वहाँ हाथ लगाया और बोली, यकीनन यहाँ कोई लेटा रहा है, बिस्तर का ये हिस्सा अभी तक गर्म है। मादाम पेरिडॉन और दूसरे नौकरों ने भी हाथ लगा लगा कर मेरा बिस्तर देखा और तस्दीक की कि मादाम लाफोल्टन की राय दुरुस्त है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी गर्दन में सख्त तकलीफ हो रही है। तभी उन्होंने मेरी गर्दन देखी भाली और कहा, यहाँ तो कोई निशान नज़र नहीं आता। किस्सा मुख्तसर सब के सब बाकी तमाम रात मेरे ही कमरे में रहे और आपस में बातें करते सुनाई दिए। अगले रोज़ उन्होंने वालिद से उसका जिक्र किया और उन्होंने वहम समझकर बात ख़त्म कर दी। अलबत्ता हदायत की कि नर्स अपना पलंग मेरे पलंग के साथ ही बिछाया करे। इब्तदा में बहुत अरसे तक ये वाक़या मेरे जहन में ताज़ा रहा। उस नौजवान हसीन औरत का चेहरा हर रात मेरी निगाहों के सामने तसव्वुर ही तसव्वुर में नमूदार होता। मुझ पर उसका ऐसा खौफ था कि ज़रा सी आहट या पर्दे की सरसराहट सुनते ही चौंक उठती। नौबत यहाँ तक पहुँची कि मैं बीमार पड़ गई और मेरा असाबी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। आखिर एक दिन वालिद ने डॉक्टर को तलब किया, जो 20 मील दूर रहता था। वो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ कर आया। डॉक्टर मेरे वालिद का हम उम्र था और बेहद संजीदा। उसने देर तक मेरा मुआयना किया और कहा, घबराने की कोई वजह नहीं, ये महज आर्जी कैफियत है। फिर उसने अपने थैले में से दवाएं निकाली, उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके बताए, अपनी फ़ीस वसूल की और चला गया। वो हफ्ते में एक बार खुद आता, मुझे देखता और चला जाता। चंद रोज़ तक मैंने दवाएं खाईं और फिर छोड़ दी। दवाओं से मुझे कभी कपकपी ना रही, अलबत्ता अकेले में मुझे डर लगने लगा। दिन रात के हर मरहले में कोई ना कोई फ़र्द मेरे साथ रहने पर मजबूर था। कभी कभी वालिद मेरे पलंग के करीब आन खड़े होते और हंस हंस कर मुझसे बातें करते। मादाम पेरिडॉन बड़ी भोली तबीयत की थी। वालिद उससे भी मजाक करते रहते और मैं हंस पड़ती। ये तमाम बातें महज मुझे खुश करने के लिए करते और फिर वो मेरी पुश्त थपथपाते और कहते, ख्वाबों पर यकीन नहीं किया करते। ऐसे डरावने ख्वाब तो हर शख्स देखता है। अगर हम ख्वाब देख देख कर डरने लगे तो बस जी चुके। वो जब तक खुश तबी से बातें करते तो खौफ मेरे नज़दीक ना आता, लेकिन जो ही वो रुखसत होते, दहशत की नामालूम सी लहर आती और मुझे अपने साथ बहा कर ले जाती। फिर वही हसीन चेहरा और सर से पा तक स्याह लिबादे में लिपटा हुआ जिस्म मेरी निगाहों के सामने रक्स करता और मैं थर थर कांपने लगती और बुखार भी चढ़ जाता। सब लोग यही यकीन दिलाने की कोशिश करते, मैंने ख्वाब देखा है। मादाम पेरिडॉन ने एक बार कसम खाकर मुझसे कहा, प्यारी लड़की, सच कहती हूँ, वो तो मैं खुद थी, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने उस रोज़ स्याह लिबादा पहना था और मैं ही तुम्हारे पास बिस्तर में लिपटी थी। भला मैं इतनी बेवकूफ़ तो ना थी कि उस हसीन और जमील चमकते चेहरे और मादाम पेरिडॉन के फूले हुए गालों में तमीज़ ना कर सकती। ताहम मैंने ऐसा ज़ाहिर क्यों किया कि जैसे मुझे नर्स की बात का यकीन आ गया हो। इस वाक़े को कई बरस बीत गए। मैं उम्र की 14वीं हदें फलांग चुकी थी कि एक और हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। वो गर्मियों की एक दिल आवेज़ और खुशगवार शाम थी। गुज़श्ता कई हफ्तों से गर्मी पड़ रही थी और आसमान पर दूर दूर तक बादल का नामो निशान न था। सहपहर के वक़्त यकायक मगरब की जानब से इब्रे स्याह का एक टुकड़ा उठता हुआ नज़र आया और उसके साथ ही फ़िज़ा की हिद्दत कम होती चली गई। वालिद उस रोज़ अपने कमरे में बैठे न जाने क्या कर रहे थे। जो ही उन्हें उस खुशगवार मौसम का एहसास हुआ, अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आए और कहने लगे,
जी चाहता है आज हम दोनों जंगल की सैर को चलें, क्या ख्याल है? ज़रूर, मैं आपसे ये बात कहने ही वाली थी, मैंने खुश होकर कहा। वालिद ने छड़ी हाथ में ली, बंदूक कांधे से लटकाई और सैर के लिए तैयार हो गए। जब पुल पर से उतरकर जंगल को जाने वाली पिगडंडी पर आए तो वालिद ने कहा, जनरल डारूफ के आने की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस वो अब कुछ अरसे तक ना आ सकेंगे। मेरे लिए ये खबर रंज का बायस हुई, इसलिए कि मैं जनरल डारूफ की आमद का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। उसकी भतीजी मेरी हम उम्र थी और मैं उससे पहली बार मिलने वाली थी। मैंने सुना था कि वह बहुत ही प्यारी और हंसमुख लड़की है। जनरल डारूफ ने वालिद को अपनी आमद की इतला कई हफ्ते कबल दी थी और अगले रोज़ वो हमारे किले में पहुंचने वाला था। जनरल से ज़्यादा मुझे उसकी भतीजी एन से मिलने का इश्तियाक था और मैं वाकई उनकी आमद का एक एक दिन बेचैनी से गिन रही थी। आखिर वो कब तक आएंगे? मैंने गुलोगीर आवाज़ में पूछा। गालबन मौसम खज़ां के बाद ही आ सकेंगे, वालिद ने सर्द आह भरते हुए जवाब दिया, यानी कम अज़ कम 2 माह बाद। और ये अच्छा ही हुआ उनकी भतीजी से तुम्हारी मुलाकात ना हुई। क्यों? मैं हैरत से अपने वालिद को तकने लगी। वो मर चुकी है। अगर तुम उससे मिली होती तो ना जाने रंजो गम से तुम्हारा क्या हाल होता। मुझे अफसोस है कि यह खबर पहले ना सुनाई। आज सुबह जनरल डारूफ का ख़त आया जिसमें उसने अपनी जान से अजीज़ भतीजी के मरने की इतला दी थी। उस वक़्त तुम सो रही थी और मैंने मुनासिब ना समझा कि तुम्हें जगाकर ये मनहूस खबर सुनाऊं। अगरचे मैंने मिस एन को देखा ना था, लेकिन उसकी मौत की खबर ने मुझ पर सख्ते का सा आलम तारी कर दिया। बेइख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने वालिद को देखा, उनकी आंखें भी तर हो गई थी और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाए हुए थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने कोट की जेब से एक ख़त निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। ये जनरल का ख़त है, तुम खुद पढ़ लो। मुझे खदशा है कि वो उस लड़की की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर सकेगा। अगर वो यहाँ आ जाए तो शायद हम सब मिलकर उसका गम बांटने की कोशिश करें। उसकी सारी ज़िंदगी फ़ौज में गुजरी और मैं जानता हूँ कि वह फौलादी असाब और मजबूत दिलो दिमाग का आदमी है, लेकिन वह उस लड़की को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता और उसे एक पल के लिए भी नज़रों से उजल ना होने देता था, क्योंकि वह उसके सारे कुंबे की आखिरी निशानी थी। अब उसके मर जाने से जनरल के दिल पर जो बीत रही होगी उसका कुछ अंदाज़ा मैं कर सकता हूँ। चीड़ के चंद घंटे चप्पड़ के चंद घने दरख्तों के नीचे लकड़ी का एक साल खुर्दा बेंच पड़ा था। हम दोनों उस पर बैठ गए। सूरज गरूब होने में अभी कुछ देर थी और मगरबी उफ़क़ पर गहरे नारंगी रंग की शुफ़क़ आहिस्ता आहिस्ता सुर्खी में बदलती जा रही थी। हवा के झोंके दम बदम तेज होते गए और ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखें मस्ती में झूमने लगीं। मैंने जनरल डारूफ का तवील ख़त 2 मरतबा पढ़ा और उसके एक एक जुमले में गमो अंदो के हज़ारों नश्तर छुपे थे। कई जगह हरूफ मिट या फैल गए थे और वहाँ कागज़ में जनरल की आंखों से गिरे हुए आंसुओं के निशान वाज़े तौर पर देख रही थी। खत पढ़ते पढ़ते मैं खुद रोने लगी। वालिद ने मुझे अपने साथ प्यार से लिपटा लिया और कहने लगे, ना रो प्यारी बेटी, खुदा की हिकमत और मशीयत पर सब्र करो। मैं समझता हूँ कि तुमने अपनी एक ऐसी अजीज़ सहेली खो दी जिसे कभी देखा न था। जनरल डारूफ का ख़त एक बार फिर बुलंद आवाज़ से पढ़ो ताकि मैं फिर सुन सकूं। मैंने रुमाल से आंखें खुश की और ख़त पढ़ने लगी। प्यारे भाई और अजीज़ दोस्त, काश ये इतला तुम्हें देने से पहले मैं मर चुका होता। तुम जानते हो मेरा पूरा ख़ानदान फना हो गया और दुनिया में सिर्फ ये मेरी एक भतीजी और मैं बाकी रह गए। अब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके हॉस्टल से वापस मेरे पास आई थी और मैं खुश था कि मेरी तन्हाई दूर हुई। तुमने उसे देखा था ना, कितनी हसीन, कितनी प्यारी,
कितनी खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की थी वो। उसमें कैसी रानाई और कैसी जिंदगी थी। मैं उसके लिए वैसा ही शोहर तलाश करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी कर दूं और अपनी तमाम जायदाद और सारा माल उसी को दे दूं। लेकिन मुझे क्या मालूम था वो सुबह का तारा थी जो आफताब के निकलते ही नज़रों से गायब हो जाया करता है। वो अचानक एक पुरइसरार मर्ज में मुब्तला हुई जिसने उसे घिन की तरह चाट लिया और उसकी रगों में से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया। मुझे अंदाज़ा ना था कि वो इतनी जल्द मुझे छोड़कर रुखसत हो जाएगी, लेकिन वो चली गई। अब मेरे पास उसकी याद में बहने वाले चंद आंसू रह गए, और जब वो जा चुकी तब मुझे उसकी मौत का असल सबब मालूम हुआ। मैं सदमे और तैश में पागल हो रहा हूँ। काश कि मुझे पहले पता चल जाता। खुदा मुझ पर रहम करे। मैं अपनी भतीजी की मौत का खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने उसके लिए मौत को एक हसीन और जमील पीकर में खुद अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त दी। ये हालात इतने पुरइसरार, इतने अजीब और दहशत अंगेज हैं कि तुम यकीन ना करोगे इस दुनिया में ऐसा भी मुमकिन है। बाखुदा मुझ जैसा अहमक इंसान रोए ज़मीन पर कोई ना होगा। सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा और कुछ ना समझ सका। मेरी प्यारी लड़की, उस हसीन बला ने सारा खून चूस लिया और मैं दम ना मार सका। काश कि मुझे एहसास हो जाता। जिस बला ने उसे मेरे हाथों से छीना है, मैं मरते दम तक उसे ढूंढता रहूँगा और दुनिया को उसके नापाक वजूद से पाक कर दूँगा। अब तू मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है।